Today we are doing a next topic of unit number 1, dipole placed in a uniform electric field. You can see here in this diagram, there is a dipole AB which is placed in this uniform electric field. Uniform means भी ये lines जो है electric field दियां इनका ਵਿੱਚ spacing जो है equal रखांगे तो uniform electric field show करेगा. इस diagram में accordingly AB एक electric dipole है. AB is a electric dipole. इस दे A पॉइंट दे ऊपर माइनस क्यू चार्ज है और B पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और डाइपोल दी लेंथ कितनी है अपने को 2a. उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर A और B के ऊपर जो चार्जेस प्लेस्ड है डायग्राम से देखो A पॉइंट ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज माइनस क्यू ई और पॉजिटिव के ऊपर क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज प्लस क्यू ई. सो वी कैन राइट हियर force at plus q charge, that is you can say F is equal to plus QE. ये सीधा मैग्नीट्यूड दिखाया है और अगर डायरेक्शन दिखावांगे तो डायग्राम से देखो दिस फोर्स इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कि जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन से ये फोर्स लग रही है. सिमिलरली फोर्स एट माइनस क्यू चार्ज ये आप किस तरह लिखांगे F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई और यदि डायरेक्शन की है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ opposite to electric field. ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ टोटल नेट फोर्स वो की हो जाएगी 0 मीन्स क्यू ई जो प्लस वाली सी और माइनस क्यू ई ये अपने को जो फोर्सेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो टोटल फोर्स जो इतने लग गई 0 मीन्स कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन जी वो डाइपोल च प्रोड्यूस नहीं हुई क्योंकि टोटल फोर्स इतने की होगी अपने को 0. पर इलैक्ट्रिक फील्ड जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ और एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर लग रही है. These two forces are equal but opposite. Also they are acting at two different points. So then they form a couple. और इस कपल करके एक टॉर्क एक्सर्ट होती है इत्थे एक टॉर्क प्रोड्यूस होएगी जो कि डाइपोल रोटेट करेगी. इट विल रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ क्लॉकवाइज डायरेक्शन 'ਚ ਇਹ जो टॉर्क है इस डाइपोल ਨੂੰ रोटेट करना शुरू कर देगी. तो कितनी इत्थे टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है पहले ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਜੋ ਟॉर्क है उसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਉ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟॉर्क ਵਾਸਤੇ ईदर फोर्स क्योंकि दोनों फोर्सेस ਦਾ जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है. सो ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 2a sin थीटा क्योंकि देखो ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NA ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਲਾइन है NB ये लाइन जो है ये दा बेस हो गया ये तो cos थीटा की डायरेक्शन दिखाएगा. सो आप अगर इत्थे sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करांगे सो दिस इज ए बी साइड तो जी आ रही है वैल्यू अपने को. सो आर्म ऑफ द कपल जो है ए सी अपने को डायग्राम दे विच आपां इत्थे दिखा सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा दोनों के अंदर
दोनों फोर्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਮ ਆਫ ਦੀ ਕਪਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ an। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ an। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ an। ਸੋ an ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ an ਓਵਰ ab। ab ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ an ਓਵਰ 2a। तो an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟਾਰਕ ਨਿਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਟਾਓ ਈਦਰ ਫੋਰਸ QE ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ an, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਅਗਰ QE ਇਨਟੂ 2a sin ਥੀਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ Q into 2a into E sin थीटा। ये बन जाएगा Q into 2a बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, इस करके P into E sin थीटा। ये अपने कोल टॉर्क ਦਾ मैग्नीट्यूड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਕਟਰ P ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ E। डायरेक्शन की है कि ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਪਲੇਨ 'ਚ P ਐਂਡ E ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਟਾਰਕ ਦਾ ਵੈਕਟਰ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਾਰਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ P and E एक प्लेन च है और टॉर्क जो टाउ है इन्हां दे परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो जो रूल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ डायरेक्शन ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, that is right hand screw rule। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਜੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੁਡਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਕਰੂ ਰੂਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ रोटेट कर रहा है डाइपोल, रोटेट करदा करदा मान लो डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ गया, तो उस डायरेक्शन च थीटा की वैल्यू की हो जाएगी 0। तो टॉर्क कितनी होएगी, टॉर्क का सी फॉर्मूला लगाया सी PE sin थीटा। तो साइन 0 होने करके टॉर्क की वैल्यू इत्थे 0 आ जाएगी। तो इस कंडीशन में असीं कहांगे कि नाउ डाइपोल इज in stable equilibrium। सो ये 1 मार्क लिए अपने को क्वेश्चन आता है कि डाइपोल दी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कदों आएगी, जो थीटा 0 हो जाए, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो किधर हो गया पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो सेकंड केस है कि अगर डाइपोल रोटेट करदा करदा जो एंगल थीटा बन जाए इत्थे 180 डिग्री हो जाए, मतलब ऑपोजिट हो जाए
तो टॉर्क की वैल्यू की आएगी PE sin 180 माइनस हो जाता अपने को ते बन जाएगा माइनस PE। ये जो कंडीशन है हुण असीं लिखांगे कि डाइपोल हुण अनस्टेबल इक्विलिब्रियम च है। नाउ डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अपने को सेकंड स्पेशल केस आ गया। थर्ड केस है कि अगर एंगल थीटा 90 डिग्री हो मीन्स इस तरीके राई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने को ਇਹਦੇ अंदर इस तरीके राई डाइपोल हो जाए। ਇੱਥੇ अपने को प्लस चार्ज थी और नीचे अपने को माइनस क्यू चार्ज थी। ये अपने को डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। इस तरीके से ਇੱਥੇ जो एंगल थीटा बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री करके जो टॉर्क होएगी PE sin 90 1 हो जाएगा ਇੱਥੇ। तो अपने को एक मैक्सिमम टॉर्क लगेगी PE। ठीक है जी। सो नेक्स्ट ਅਸੀਂ अगर ਇਹਦਾ यूनिट लिखना चाहिए तो यूनिट भी ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ से लिख सकते हैं कि टॉर्क लिए ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। नेक्स्ट पेज यूनिट आएगा अपने को यूनिट ऑफ टॉर्क ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर। अगर वो ਅਸੀਂ मीटर च कह दीए ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो यूनिट लिए अपने को न्यूटन इन मीटर ये अपने को यूनिट आ जाएगा टॉर्क का। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला इज फोर्स लिए अपने को क्या आंदा m1 l1 t माइनस 2 और डिस्टेंस लिए भी अपने को लेंथ आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m1 l2 t माइनस 2। ये अपने को टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ कुछ और स्पेशल केसेस देखांगे ਇਹਦੇ पर्टिकुलर केसेस। कि डाइपोल ਨੂੰ ਅਸੀਂ इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ अंदर पैरेलल डायरेक्शन च रखांगे। सो पहले कोल अपने कोल कंडीशन आएगी फील्ड इज यूनिफॉर्म इवेंट फील्ड इज यूनिफॉर्म और डाइपोल ਨੂੰ किदा रखा गया है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके राही डायग्राम बन सकता है। बी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल भी इस तरीके राही रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो इस केस दे विच अपन पता सीगा कि जो नेट फोर्स आ रही है वो 0 सी और नेट टॉर्क क्योंकि अपने को थीटा थे की हो रहा है 0। तो टॉर्क लिए भी अगर फॉर्मूला लिखांगे PE sin थीटा ये भी की हो जाएगी 0। सेकेंड केस जो सी डाइपोल ਨੂੰ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखना पैरेलली है। इस तरीके रही ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड दी इंक्रीजिंग डायरेक्शन फील्ड इज इंक्रीजिंग इस डायरेक्शन। हम डाइपोल ਨੂੰ ਅਸੀਂ रख रहे हैं ਇੱਥੇ माइनस क्यू प्लस क्यू ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ਇੱਥੇ अपने को जो फोर्स होएगी Q इंटू E ਇਹਦੀ वैल्यू ज़्यादा होएगी। ਇੱਥੇ जो डायरेक्शन है फोर्स दी इस तरफ से फोर्स की डायरेक्शन होएगी माइनस क्यू ये मैग्नीट्यूड है ये वैल्यू लैस होएगी क्योंकि ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ਇੱਥੇ अपने को चार्जेस की जी डेंसिटी होएगी वो ज़्यादा होएगी एज कंपेयर टू हेयर। तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होएगी वो इस तरफ में होएगी। ये अपने को नेट फोर्स होगी। सो इस सिचुएशन से थीटा अजे भी 0 है क्योंकि पैरेलल है। तो जो टॉर्क होएगी
वो तो 0 ही मिलेगी ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੁਣ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करके ਆਪਾਂ देखा है कि जो डायरेक्शन आ रही है नेट फोर्स की, दिस इज अलोंग डाइपोल मोमेंट। ਹੁਣ ਅਸੀਂ तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस च अपने कोल सीगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड च रखा हुआ है। डायग्राम च ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिक्रीजिंग डायरेक्शन है। ये अपने को डाइपोल है। हुण जो फोर्स लग रही है इत्थे एफ क्यू ई इस डायरेक्शन च इसकी वैल्यू लेस होएगी। इस तरफ में जो फोर्स लगेगी इसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी। तो जो नेट फोर्स होएगी उसकी डायरेक्शन ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस तरीके से मिलेगी। ये अपने को डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से ही, तो ये नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी अपने को। सो थीटा अगेन 0, सो नेट टॉर्क इज 0 इस एंगल के करके, बट नेट फोर्स इज नॉट 0। किस तरफ है? दिस इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। सो ये सारे पॉइंट डिस्कस करने तो बाद जो नेट कंक्लूजन अपने को आ रहे हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन ਲਈ पहला ये अगर डाइपोल ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ पैरेलल रखते ਸੀਗੇ, तो फर्स्ट केस डाइपोल इज पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को जो केसेस आए सीगे, नेट फोर्स इज 0 और नाल दे नाल ही नेट टॉर्क भी 0। ये पहला रिजल्ट आया। सेकेंड असी भी डाइपोल ਨੂੰ ਅਸੀਂ पैरेलल तो रखांगे बट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस केस च अपने को क्या आया सीगा, नेट टॉर्क 0 पर नेट फोर्स जेडी सी 0 नहीं सी। नेट फोर्स इज नॉन 0। तीसरा एक क्वेज और देख लेने हैं। नेट कंक्लूजन च कि व्हेन डाइपोल इज placed at any angle, हुण पैरेलल नहीं रख रहे, in a non-uniform electric field, तो उस केस च नेट टॉर्क भी मिलेगी और नेट फोर्स भी मिलेगी। देन नेट फोर्स इज non-zero, also net torque is non-zero। सो अपने को 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिहड़े कवर हो जाने। तो नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ पोटेंशियल एनर्जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड च रखा हुआ है।
तो अपने को आर्टिकल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो डायग्राम पिछे बनाया ਸੀਗਾ ਉਸੇ डायग्राम ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जो टॉर्क ਦਾ रिलेशन निकालिਆ ਉਹ डायग्राम ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ डाइपोल ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। दिस इज एंगल थीटा और ਇੱਥੇ एक टॉर्क लग रही सी जो डाइपोल ਨੂੰ रोटेट कर रही सी और डाइपोल ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀ PE sin थीटा। ये डाइपोल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ this torque rotates the dipole along the direction of electric field। तो जो डाइपोल रोटेट करेगा तो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी। पर अगर असी इस टॉर्क के अगेंस्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन च अगर डाइपोल को रोटेट करना चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सो फॉर स्मॉल रोटेशन मीन्स डी थीटा छोटा होएगा तो वर्क डन भी स्मॉल होएगा। सो स्मॉल वर्क डन ये ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ रोटेट करांगे ਇਹਦੀ वैल्यू निकाल सकते हैं dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू अपने को ऊपर लिखी सी PE sin थीटा इंटू डी थीटा। तो टोटल वर्क डन भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वर्क डन in rotating the dipole through angle theta 1 to theta 2। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ W is equal to theta 1 to theta 2 PE sin theta into d theta। PE बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन सिर्फ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ sin थीटा ਤੇ आएगी sin थीटा d थीटा। ये अपने कोल PE ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन आएगी माइनस cos थीटा। लिमिट्स अप्लाई करनी है सो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस बाहर रख लिए अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट। ये अपने कोल टोटल वर्क डन आ गया एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ U ਨਾਲ डिनोट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो ये अपने कोल माइनस PE इंटू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਾਂਗੇ एंगल ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करके। पहला केस है कि मान लो इनिशियली डाइपोल ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ इस तरीके का ही फील्ड ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ है कि थीटा 1 एंगल जो है 0 डिग्री और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रोटेट करके सेट करना चाह रहे हैं किसी एंगल थीटा ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ पोटेंशियल एनर्जी ਸਾਨੂੰ मिलेगी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ वर्क डन जो है इस फॉर्मूले 'ਚ वैल्यू लगा ਦਾਂਗੇ माइनस PE थीटा 2 जगह ਤੇ थीटा cos थीटा और थीटा 1 की जगह ਤੇ cos 0 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये अपने को वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस PE cos थीटा माइनस 1। ये अपने को पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर लांगे इस केस लिए। अगले केस असी ये देख रहे हैं भी अगर
डाइपोल इनिशियली इस तरह सैट किया हुआ है कि वो θ1 एंगल जो है इलैक्ट्रिक फील्ड नाल एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री और ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ रोटेट करके किसी एंगल थीटा ऊपर सैट करना चाह रहे हैं तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ कितना वर्क डन कैलकुलेट करांगे दिस इज माइनस PE cos θ2 की जगह ते थीटा और cos 90 की वैल्यू जी है वो 0 हो जाएगी cos 90 तो फॉर्मूला आ जाएगा माइनस PE cos थीटा दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इसमें ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੂਲ ਸੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ θ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ θ1 की जो वैल्यू थी 90 डिग्री है इसमें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ θ1 ਨੂੰ ਉੱਥੇ 90 डिग्री ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਡਾਈਪੋਲ ਰੋਟੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ 'ਚ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ तो इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ so much